السلام علیکم، دس از مرشد علی اینڈ یو آر واچنگ دا مرشد ٹی وی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو سب سے پہلے بدلنا پڑے گا، اور خود کو بدلنے کے لیے، اپنا بیٹر ورژن بننے کے لیے، اپنا آپ بہتر کرنے کے لیے آپ کو ان 7 چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان 7 عادات کو گڈ بائے کہنا پڑے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 عادات ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابی سے روک رہی ہیں۔ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا آپ بہت ہی زیادہ، آپ کا کل، آپ کا آج آپ کے کل سے زیادہ بہتر ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کسی ایک چیز کو بھی مس مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی میں جینا۔ دیکھیں، ہماری تمام لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور رونما ہو چکا ہوتا ہے جو ہمیں بار بار ستاتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے، یاد آتا رہتا ہے، اور پھر بعض لوگ تو اسی واقعے کے ساتھ جڑ کے رہ جاتے ہیں، اسی واقعے کا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت پرانی مثال بنی ہوئی ہے کہ مرے ہوئے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے جو بھی مس ہیپ آپ کی لائف میں ہوا ہے، یقینی سی بات ہے بہت بری چیز تھی جو ہوئی، وہ آپ کی غلطی تھی یا کسی اور کی غلطی تھی، جو بھی تھا اس کو اب آپ لیٹ اٹ گو کریں، اس کو جانے دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، ماضی کے وزن کے ساتھ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، آپ کے پیر وزنی ہو جائیں گے بہت زیادہ، تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ماضی سے نکلنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس واقعے سے کچھ اگر سیکھا نہیں ہے، دیکھیں کچھ بھی مس ہیپ ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہوئی ہے، مس ہیپ اگر قدرتی طور پر ہوا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے یا پھر کوئی شخص ہمیں انتقال کر گیا ہے، یعنی کہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کی یادوں کے اندر اب بس جیتے رہیں گے۔ اب اس کو چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں۔ یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس میں آپ کی غلطی تھی، تو پچھتاوے کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، اب اس کو چھوڑ دیں، اب پچھتاوا نہ کریں، اب بس آگے کی طرف بڑھیں۔ ہاں، اس سے جو آپ کو تجربات حاصل ہوئے ہیں، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا، جو سیکھا ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں کہ دوبارہ ایسی غلطی آپ نہ کریں۔ تو آپ نے اگر اپنے آپ کا بہتر ورژن بننا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے ماضی سے نکلنا پڑے گا اور حال میں جینا پڑے گا۔ حال ہی وہ چیز ہے جس کے اندر جی کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے پریزنٹ پہ اگر فوکس کریں گے نا تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ ڈیسیژن لے سکیں گے، زیادہ اچھے طریقے سے آپ کام کر سکیں گے۔ نمبر 2، خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا۔ دیکھیں، یہ چیز آپ کی یونیکنیس کی قاتل ہے، یہ آپ کے پوٹینشل کی قاتل ہے، آپ کے ٹیلنٹ کی قاتل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو وہیں کا وہیں ختم کر دیتی ہے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی اس کی زندگی میں ایسا، دیکھیں خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہر کسی کے پوٹینشل الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی اسٹرینگث الگ ہوتی ہے، ہر کسی کے کامیابی کا ڈیفینیشن الگ ہے، ہر کسی کے پاس کوالٹی کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہر کسی کے پاس بیوٹی کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ دیکھیں، آپ کی بھی جو کامیابی ہے اس کی ڈیفینیشن آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کی یونیکنیس ہے، آپ کا رستہ الگ ہے، آپ کا طریقہ کار الگ ہے، آپ کا کامیاب ہونا بھی الگ ہوگا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، ورنہ ہمیشہ اس سوگ میں ہی مرے رہیں گے، اسی پریشانی کے اندر۔ اپنے پوٹینشل پر آپ کام ہی نہیں کر سکیں گے، اپنے کام کے اوپر آپ فوکس ہی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ واقعی میں آپ اپنے آپ کو بدل لیں، آپ زندگی میں کامیاب شخص بنیں، تو دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا بند کر دیں۔ آپ کی ایک الگ اینٹیٹی ہے، اپنی خود کی الگ پہچان بنائیں، آپ الگ سے ایک علیحدہ برانڈ ہے، آپ ایک یونیک برانڈ ہے، اور اسی چیز کو پہچاننے کی آپ کو صرف ضرورت ہے، اور یقینی طور پر جس دن آپ نے پہچان لیا نا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 3، یہ ایسی خامی ہے جو ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، یہ مجھ میں بھی تھی، میں نے
भी बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई है। ऑटो पायलट मोड पर जीना, यानी कि अपनी जिंदगी को एक जैसा कि सारे लोग इसी तरीके से कामयाब होते हैं, सारे लोग पढ़ के कामयाब होते हैं तो हमने भी वही पढ़ना शुरू कर दिया, या एक बंदे ने अगर रिक्शा ले लिया तो सारे लोग फिर रिक्शा लेना शुरू कर देंगे कि जी इसी तरीके से कामयाबी होगी। अगर एक बंदे ने जी वो बीबीए कर लिया, वो ऐसे कामयाब हो गया, तो सारे लोग बीबीए करने भाग। भाई भेड़ चाल से कामयाब नहीं होता। आपने अंधी तकलीद नहीं करनी के पीछे आप बस आंखों पे पट्टी बांध के पेट पे पत्थर बांध के भागे जाना है। अपनी सोच समझ को भी बरोए कार लाना है, इस्तेमाल करना है। जब आप अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी एक जैसी रूटीन नहीं बनेगी, फिर आप हमेशा हर जो आपका एक्शन होगा वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन के जरिए से आप कर सकेंगे। देखिए अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जब आप बनाएंगे, जब आप अपने फैसलों के अंदर सोची समझी तरीकेकार से आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। आपको पता होगा कि आपने ये जो कदम उठाया क्यों उठाया है, या अंधी तकलीद करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये उन्होंने या उस दौर के अंदर उन लोगों ने क्यों किया था ऐसा, या माजी के जितने भी मामला चलते आ रहे हैं उसी तरीके से। देखें आपके अंदर वही बात आ गई, यूनिकनेस है आपके अंदर, आपका पोटेंशियल डिफरेंट है, आप डिफरेंट तरीके से उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी भेड़ चाल की तरह एक ही तरह चलते जाएंगे, वो तो सर सैयद अहमद खान ने भी मकाला लिखा था ना, रस्म और रवाज की तकलीद, अगर आप भी तकलीद करते रहेंगे तो आपकी पैदावारी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर सोचने समझने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी, आप भी बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी ये पैदावारी सलाहियतें आपने मरने नहीं देनी, और यही आपकी यूनिकनेस है, यही आपको डिफरेंट बनाती है और यही आपको कामयाब बनाती है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। हमारे जैसे गरीब मुल्कों के अंदर ये समझा जाता है कि मल्टीटास्किंग होना एक बहुत ही अच्छी चीज है, बल्कि हम तो इसको नेमत समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। देखिए अगर आप एक वक्त पे एक काम करते हैं तो आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर मल्टीपल वर्क्स एक ही टाइम पर कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ना किसी तरीके से आप कर भी गुजरते हैं तो आपका माइंड इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है, आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकेंगे, किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर सकेंगे, किसी भी चीज में आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकेगी जितनी ज्यादा अगर एक वक्त में एक काम। देखिए पहले तो एक काम पर फोकस कर लें, कभी भी कोई भी काम करें तो पहले एक काम को लें और उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लें और फिर उसके बाद दूसरे काम को उठाएं। इस तरीके से आप कम वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं। बरअक्स ये कि मल्टीपल काम करें और उनके अंदर आपकी जो ना एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी ना, और आप ज्यादा टाइम भी लगाएंगे यकीनन, क्योंकि इतने ज्यादा काम में फौरन स्विच करने से आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो ये याद रखें कि आपने मल्टीटास्किंग को भी खैराबाद कह देना है, एक वक्त पे एक काम करना और उसमें अच्छे तरीके से 100% अपना फोकस लगाना है ताकि आप अपना बेस्ट शॉट दे सकें। नंबर 5, अपनी जरूरियात को नजरअंदाज करना और अपने इमोशंस को दबाना। देखें ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अपनी देखिए आपकी जिस्मानी जरूरियात हैं, आपकी मेंटल नीड्स हैं, आपकी फिजिकल नीड्स हैं, आपकी मुख्तलिफ किस्म की इमोशंस हैं, आपकी इमोशनल नीड्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, इन सबको पूरा करना भी आपका फर्ज बनता है। आप तो ये समझते हैं कि जी काम से हट जाऊंगा, नहीं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब अपने आप की तमाम नीड्स को पूरा करेंगे, आपकी हेल्थ परफेक्ट होगी तो आप दोबारा से अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को अगर पूरा करेंगे तो आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियतों में इजाफा होगा आपकी, तो ये तमाम चीजें इंक्रीज होंगी। तो अपने इमोशंस का भी ख्याल रखा करें, उनको भी दबाने की जरूरत नहीं, जो आपके इमोशंस हैं उनको बाहर निकलने दें, उनको अच्छे तरीके से डेवलप होने दें, उनको फील फ्री करवाएं ताकि आप आसानी से एक आजादी के साथ अपना काम कर सकें, आपके अंदर कोई चीज घुट के ना रह जाए। देखिए जितना ज्यादा आप अपने आप को बंद करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को दबा के रखेंगे, जितना अपनी नीड्स का ख्याल नहीं करेंगे, उतना ही आप बंद होके डब्बे की तरह
बना रह जाएंगे, कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। आपके अंदर वो जो पैदावारी सलाहियत है, वो जो उड़ने वाली खासियत है, वो पैदा नहीं होगी। और जब उड़ने वाली खासियत पैदा नहीं होगी तो फिर आप कामयाबी के पंख लेकर कैसे उड़ेंगे। नंबर 6, परफेक्शन के पीछे भागना, परफेक्शन के साथ चिमटे रहना। देखें, इस कायनात के अंदर इंसान एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट हो भी नहीं सकता। और इंसान की बनाई हुई चीज में भी यकीनन कहीं ना कहीं कजी जरूर है, कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन जरूर है। और ये इम्परफेक्शन ही है जो उसको खूबसूरत बनाती है। देखिए, खूबसूरती पाई ही इम्परफेक्ट चीजों में जाती है। परफेक्ट चीजें तो यकसा हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, और एक जैसी चीजों के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती हमेशा डिफरेंट चीजों में होती है, इम्परफेक्शन के अंदर खूबसूरती होती है। तो इसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा ये कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके लिहाज से जो छोटी मोटी कजी, जो बुराई, जो कमी रह गई है, वो बेहतर है, वो अच्छी है, वही चीज उसको खूबसूरत बना रही है, वही उसको स्ट्रांग बनाती है, वही उसको मजबूत बनाती है। तो आपने भी ना आज से अगर अपना आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कामयाब हो, या आप अपना बहुत ही बेहतरीन वर्जन बनना चाहते हैं इसी साल के अंदर, तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें कि आपने परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। आपने देखना है कि जो थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन रह गई है वो बेहतर है, वो जबरदस्त है, वो बेहतरीन है, बल्कि वही उसको ज्यादा खूबसूरत बना रही है। आपने रियलिस्टिक ज्यादा रहना है बजाय के परफेक्ट होने। नंबर 7, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मसरूफ रहने का मतलब ही प्रोडक्टिविटी होता है। यानी कि जो शख्स मसरूफ है वही काम कर रहा है, बाकी जो मसरूफ नहीं है वो कोई काम नहीं कर रहा। काम का मतलब ये कि हमेशा बिजी रहना, ऑलवेज बिजी। देखिए, ऑलवेज बिजी का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। ये बात याद रखें कि हमेशा का मसरूफ रहना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को तबाह और बर्बाद कर देता है। देखिए, अपने लिए वक्त निकालें, कुछ ना कुछ देर फारिग भी बैठा करें। ये जो तन्हाई है ना, ये आपका सबसे बेहतरीन साथी है। थोड़ा वक्त अपने साथ तन्हा भी गुजारा करें। सिर्फ हमेशा बिजी रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा, कमी आएगी। अगर आप थोड़ा देर फारिग बैठे रहते हैं, थोड़ा आपको सोचने का मौका मिलता है, थोड़ा खुद को जानने का मौका मिलता है, फिर आप किसी भी काम में अपना जब फोकस लगाते हैं तो उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब आप अपने आप को खुद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ना, तो काम तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो अभी से आपने ये तो काम करना है कि अपने आप को हमेशा बिजी रखना छोड़ दें। कुछ देर अपने लिए जरूर निकाला करें, कुछ फारिग औकात तन्हाई में खुद के साथ सिर्फ और सिर्फ गुजारा करें, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम दिया करें। देखिए, इन 7 चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका ना, तो यकीनी तौर पर आप अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से कितने ज्यादा मुख्तलिफ हो गए हैं। और जब आप बेटर महसूस करेंगे ना, फिर देखिएगा आपका फोकस कहाँ पहुंचेगा, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ पहुंचेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ पहुंचेगी। और फिर किसी भी काम में आप मन लगाएंगे, किसी भी काम में आप फोकस करेंगे, किसी भी काम को आप करके देख लीजिएगा, कामयाबी यकीनन आपके कदम चूमेगी, यकीनन आप कामयाब होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।